Hello bachcho, good morning to all of you. My dear students, I hope you are all fine near your home. Students, we are today discuss chapter number 3rd, class +1 subject sociology. This chapter belonging to the understanding social institution. Are you seeing in my presentation caste, social institution, first caste, tribe, family and kinship. These are three component when mixed up with each other known as a social institution, because these three component emerge in the society. Understanding social institution means what is the social institution and why this स्टडी इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, कि इनकी जो स्टडी है वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। ये हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, वी विल डिस्कस हेयर। फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। डू यू नो व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन? बिफोर गोइंग टू मीनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन आई वुड लाइक टू द टाइप्स, आई वुड लाइक टू द क्लियर टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. Social institution has two types. Firstly, for informal, next formal. Informal social institution related to family, marriage, kingship. All three components make an informal social institution. And next, formal institution, example law, education, religion, etc. Formal institution, that institution which are made by others person, like as a government make a law, education policy and some religion activity for the pupils, कि उनके लिए कुछ रिलीजियस एक्टिविटी उनको प्रोवाइड करवाती है, कि उनके लिए रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो कब और कैसे गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल, फैमिली, मैरिज, किंगशिप. This informal social institution made by us without any interference of the other persons. Have you clear now? Let us come to the definition. First, a social institution consists of a group of people who have come together for a common purpose. We have already discussed in previous chapter, social institution has a come together for a common purpose. When we are living in the society, we have so many needs. We are not fulfill that needs without helping of the other peoples. कि हम किसी भी अपनी जो नीड्स उसको किसी भी दूसरे बंदे की हेल्प के बिना पूरा नहीं कर सकते. वी आर हेल्पिंग हैंड फ्रॉम द अदर पीपल्स एंड फॉर द अदर पीपल्स. कि हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम लोगों की हेल्प भी करते हैं और लोगों से हेल्प लेते भी हैं, because we have some common purpose. What is the common purpose? Common purpose, live in the society with peacefully and make a good relation for the with the other peoples. कि दूसरे लोगों के साथ ऐसे रिलेशन बनाना कि सोसाइटी के अंदर हम लोग पीसफुली अपने आप को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें. These institutions are part of the social order of society. ये जो सारी इंस्टीट्यूशन है हमारी, ये सोशल ऑर्डर जो है हमारी सोसाइटी के हैं. सोसाइटी की वजह से स्ट्रक्चर व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रक्चर? सोसाइटी मेक ए सम मोर कंपोनेंट लाइक एज ए इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस एक्टिविटीज़, कल्चर्स, रिलीजियंस, बिहेवियर, ट्रेडिशंस, सेरेमनीज एटसेट्रा एंड सो मोर. कि जो हमारी सोसाइटी है ये बहुत से पार्ट्स के स्ट्रक्चर से बनी है. A social institution consists of a group of people who have come together for a common purpose. सबके common purpose होते हैं. These institutions are part of the social order of a society. तो ये हमारी सोसाइटी के social order होते हैं. तो हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं. सोसाइटी के अंदर रहते हुए we have a family. तो हमारे पास फैमिली होती है. फैमिली के अंदर हम लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और हम अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. कि हम अपने लॉ एंड ऑर्डर से अपनी फैमिली के साथ रहते हुए एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को. व्हाट इज़ ए फैमिली? नेक्स्ट वी हैव सम मोर पॉइंट. फैमिली, a domestic group consisting of adults and children may contain one or more elementary families. जो हमारे फैमिली इन सिंपल लैंग्वेज
वी आर लिविंग विद ईच अदर इन ए ग्रुप नोन एज ए फैमिली। डोमेस्टिक ग्रुप जो होता है हमारा वो हमारी फैमिली का होता है। विदाउट डोमेस्टिक ग्रुप इट्स ए सोसाइटी। डोमेस्टिक ग्रुप नोन एज ए फैमिली, विदाउट डोमेस्टिक ग्रुप नोन एज ए सोसाइटी। तो हमारे पास हमारी फैमिली के अंदर हम अपने घर के लोगों के साथ रहते हैं, जिसके अंदर हमारे छोटे बहन भाई भी होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड मदर एंड फादर भी होते हैं। दिस इज नोन एज ए फैमिली। फैमिली आगे न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली से होती है, जिसे हम न्यूक्लियर सिंगल भी कहते हैं, जॉइंट फैमिलीज बिग फैमिली भी होती है। कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैमिलिया। ये वर्ड्स कहाँ से आए फैमिली? फैमिली वर्ड से कम फ्रॉम लैटिन वर्ड फैमिलिया मीनिंग ए हाउस होल्ड, एक घरेलू। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। बट यू नॉट अबाउट प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप इज नोन एज ए इनिशियल्स ग्रुप। जो सबसे पहले आरंभ होता है वो हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है। ए फैमिली इज ए ग्रुप एंड एन इंस्टीट्यूशन एज इट हैज़ सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर एट इट्स बेस। जो हमारी फैमिली होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसके ऊपर हमारी फैमिली डिपेंडेंट होती है। फैमिली इज ए प्राइमरी इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशलाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फैमिली इज ए प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ये इनिशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो हेल्प करती है टू मेक अ सोशलाइजेशन। व्हेन वी आर लिविंग इन द फैमिली वी हैव सम नेबर्स। तो हमारे कुछ नेबर्स होते हैं। वी आर लिविंग विद दैट नेबर्स इन पीसफुली एंड सेम एंड सम कॉमन बेसिस एंड सम कॉमन एक्टिविटी। तो हमारी कॉमन एक्टिविटीज़ होती है। जब हम अपनी सोसाइटी नेबर्स के अंदर से रहते हैं, नेबर से फिर हम अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो हमारी एक सोशलाइजेशन बनता है। सोशलाइजेशन जिसके अंदर वी आर ऑल सेलिब्रेट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, सेरेमनीज, कस्टम्स एटसेट्रा। तो हम अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये सब रहते हैं। इन अवर सोसाइटी वी आर सेलिब्रेट सच काइंड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल रिलीजन्स। तो हम इन सब के रिलीजन को अपनाते हैं, इनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। वी आर सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रिलीजन। हम सब लोगों के आपस के जो धर्म के रिलीजन होते हैं हम उनको भी सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ। इट्स ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। ये हमारी सोशलाइजेशन का मेजर कंपोनेंट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। फैमिली के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इट्स ए यूनिवर्सल फिनोमिना इन द वर्ल्ड। ऑल ह्यूमन बीइंग आर लिविंग इन द सोसाइटी फॉर्म एंड सोसाइटी अगेन लिव इन द फैमिली फॉर्म। तो जो हमारा पूरे वर्ल्ड के अंदर सिस्टम है एक सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी के अंदर फिर हमारी फैमिली के अंदर बना हुआ है। प्रिवेंस ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप। हम एक दूसरे के साथ अपने आप को इमोशनल रिप्लेसमेंट के अंदर रखते हैं। लिमिटेड इन साइज, हमारे साइज होते हैं अलग अलग। फैमिली इज ए बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी बिकॉज इन आवर फैमिली वन मैन इज ए प्रेजिडेंट नोन एज ए फादर। कि हमारे एक फैमिली का प्रधान होता है जो हमारा बड़ा मेंबर होता है, तो हम उसको प्रधान कहते हैं। वो हमारा फादर, ग्रैंड मदर, कोई भी हो सकता है। एक्सिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली। हम सब के अपने अपने राइट्स होते हैं, म्यूचुअल्स होते हैं जो फैमिली के अंदर रहते हैं। सोशलाइजिंग ऑफ द मेंबर इज द बेसिक टास्क ऑफ ऑल फैमिलीज। तो ये हमारे सारे सोशलाइज क्या होते हैं, मेजर बेसिक कंपोनेंट होते हैं फैमिली बनाने के अंदर। प्रिविलेंस ऑफ मीटिंग रिलेशनशिप हैविंग फॉर्म ऑफ मैरिज। Next, joint family. A joint family consists of man, his married sons and their wives and children, and his unmarried daughters. In the joint family form, we are living with the all family members. We are living with our childs, our sister, which is unmarried. जो अनमेरिड है उनके साथ रहते हैं। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंटी। वी आर लिविंग विद द सेम टेरिटरी। हम एक ही जगह के ऊपर रहते हैं। ए जॉइंट फैमिली में परसिस्ट इवन आफ्टर द फादर्स डेथ, द एल्डेस्ट सन बिकमिंग द हेड इन प्लेस ऑफ द डेड फादर। यस, बिकॉज इन आवर फैमिली हु इज द हेड ऑफ आवर फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ आवर फादर, आवर एल्डर ब्रदर बिकम ए हेड ऑफ द फैमिली। ओकेशनली ए विडो, सिस्टर, डॉटर एंड हर चिल्ड्रन में बी पार्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली। तो सारे बंदे जो एक ही फैमिली के सेम कॉमन उनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक ही दूसरे के साथ रहते हैं, जिसके अंदर हमारे अंकल आंटी, हमारे ग्रैंड फादर मदर, हमारे जो बच्चे होते हैं, जो हमारे अनमेरिड
अपने ब्लड रिलेशन वाले होते हैं वो सारे एक ही छत के नीचे रहते हैं. दिस इज नोन एज ए जॉइंट फैमिली. Single family. A single detached dwelling contain only one dwelling unit and is completely separated by open space nor side from any other structure. कि हमारे सिंगल फैमिली के अंदर वन मैन लिविंग विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. वो अपनी एक बंदा अपनी वाइफ के साथ और चिल्ड्रन के साथ ही रहता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर लाइक एज ए अनमैरिड डॉटर्स, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, आंटी, अंकल एटसेट्रा. तो उनसे जो अलग रहता है दिस नॉन एज ए सिंगल फैमिली. A single family home, house or dwelling means that the building is a structure maintained and used as a single dwelling unit. कि जो सिर्फ एक ही बंदा अपने घर को मेंटेन करता है दिस नॉन एज ए सिंगल फैमिली. तो उसको हम सिंगल फैमिली के अंदर मेंटेन करते हैं. स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर नाउ? नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द फैमिली. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फैमिली? Fulfillment of sexual needs. Because the peaceful mind, people are living with each other. Next, production of children. Function of family. When we are living family, we have children in our family. Provision of a secure home through creation of a shared household. कि हम अपने जो हाउस होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करके रहते हैं. सोशलाइजेशन ऑफ द यंग मेंबर्स. यंग मेंबर्स जो होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर वो रिलेशन बनाते हैं विद ईच अदर इन द सोसाइटी मेंबर टू मेंटेन सोसाइटी. प्रोटेक्शन ऑफ द यंग. इकोनॉमिक प्रोविजन फॉर द मेंबर्स. रिलीजियन ओरिएंटेशंस मीन्स इन आवर फैमिली वी हैव रिलीजियस एक्टिविटी एंड वी आर follow that type of religion activity with the other family members and adopt our ancestors hierarchy religion. Education provision. Family provide us education because we are earning a hand. We are dependent on our family and family give us a education facility. Health care provisions. When we are sick, our family member give a health care provision with the help of doctor. We are not able such type of health care facility directly. We are take health facility with the help of our family members. That's all. Next we will discuss more concept in this chapter. Today this chapter has been finished with this concept. I hope you are understood such type of concept. This chapter is broad. Some component we'll discuss next lecture. Thank you. We will meet again in next day.